عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کا شور، آزاد امیدوار حافظ ممتاز احمد نے نتائج کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا۔ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کا شور، آزاد امیدوار حافظ ممتاز احمد نے نتائج کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا۔ حافظ ممتاز احمد کا NA 58 سے دوبارہ گنتی کے لیے الیکشن کمیشن کو خط۔ آزاد امیدوار حافظ ممتاز احمد نے کہا کہ فیصل آباد کے حلقہ NA 58 میں الیکشن نتائج میں مبینہ دھاندلی کی گئی۔ پولنگ اسٹیشنوں سے حاصل کردہ فارم 45 کے مطابق دوبارہ گنتی کرائی جائے۔ فارم 45 کے مطابق مد مقابل امیدوار کو شکست ملی ہے۔ فارم 47 میں ہارے ہوئے امیدوار کو فاتح قرار دیا گیا۔ فارم 45 کے مطابق میرے ووٹ 1,17,659 ہیں۔ مخالف لیگی شہباز بابر کے 99,399 تھے۔ تبدیل شدہ فارم 49 پر شہباز بابر کے 1,19,559 ووٹ ہیں، جبکہ میرے 1,05,653 تھے۔ فارم 47، 48 اور 49 کے اجرا کے وقت الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی۔ حافظ ممتاز احمد کا کہنا تھا کہ NA 58 کے مکمل نتائج فارم 45 کے مطابق جاری کیے جائیں۔ الیکشن ہو گئے، نتائج بھی آ گئے، ملکی سیاسی عدم استحکام کا بحران تاحال جاری، خام مال کی قیمتیں کم ہوئیں، نہ کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوئی۔ الیکشن ہو گئے، نتائج بھی آگے، ملکی سیاسی عدم استحکام کا بحران تاحال جاری۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام کی فضا فیصل آباد کی مارکیٹ سے اثر انداز، خام مال سستا ہونے کی بجائے مہنگا ہونے لگا، کاسٹنگ مزید مہنگی ہوگی۔ کاروباری افراد کہتے ہیں الیکشن نتائج سب مانیں تاکہ کاروبار چل سکے۔ کسی سیاسی جماعت کو اکثریت نہیں ملی جو زیادہ متاثر کر رہی ہے۔ سب کو ملکی معاشی صورتحال پر غور کرنا ہوگا۔ مارکیٹس میں خریدار نہیں، انویسٹر بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ الیکشن میں کسی جماعت کو بھی وہ اکثریت نہیں ملی، تو اس کی وجہ سے دوبارہ پھر وہی جو صورتحال سیاسی عدم استحکام والی وہ شروع ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں میں بے چینی ہے، پتہ نہیں آگے جا کے کیا بننا ہے۔ اس وجہ سے مارکیٹ میں اس وقت کاروبار بہت کم تھوڑا ہو رہا ہے۔ انویسٹر انویسٹمنٹ کرنے سے گھبرا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور مارکیٹ میں کوئی گاہک نہیں ہے۔ کاروباری افراد نے سیاسی جماعتوں کو معاشی استحکام کے لیے معاملات جلد طے کرنے کا مشورہ دے دیا۔ حکام کی عدم دلچسپی یا معاملہ کچھ اور، FBR کا معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن کا منصوبہ التوا کا شکار ہو گیا۔ معاشی چیلنجز کا مقابلہ، اصلاحات، اقدامات کے منصوبے فائلوں میں دب گئے۔ FBR کا معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن کا منصوبہ التوا کا شکار۔ 145 سرکاری و نیم سرکاری محکموں کو آن لائن سسٹم کے ذریعے FBR کے ساتھ منسلک ہونا تھا۔ ان محکموں نے سروسز حاصل کرنے والے تمام محکموں اور افراد کی تفصیلات FBR کو فراہم کرنا تھیں۔ ریل پر سفر، نئی گاڑیوں، جائیداد کی خرید و فروخت اور دیگر کاروباری افراد کی تفصیلات بھی محکمہ نے دینی تھیں۔ تفصیلات کی روشنی میں متعلقہ افراد کے ذرائع آمدن اور ٹیکس کی مانیٹرنگ ہونی تھی۔ FBR کی جانب سے عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے منصوبہ ٹھپ ہو گیا۔ FBR حکام کے مطابق منصوبے پر عمل درآمد کے لیے جلد نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عمیر اعظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ جنگ میں یوٹیلیٹی سٹورز پر سستا آٹا نایاب، غریب عوام یوٹیلیٹی سٹورز پر گھنٹوں انتظار کے بعد خالی ہاتھ گھروں کو لوٹنے پر مجبور۔ جنگ میں یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی قلت، غریب عوام حکومتی ریلیف سے محروم، گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد خالی ہاتھوں گھر کو جانے لگے۔ انتظامیہ کی نااہلی پر شہری بلبلا اٹھے، بولے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کے حصول کے لیے صارفین زمین پر ڈیرے ڈالنے پر مجبور ہیں۔ دہاڑی توڑ کر آتے ہیں مگر آٹا نہیں ملتا۔ ہم دیہڑی دار بندے ہیں، ہم آٹا نہیں ملتا، دیہڑی توڑ کے آئے ہیں، 3-4 دن سے آٹا ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں مل رہا۔ حکومت سے درخواست ہے ہمیں آٹا ملا جانے۔ خواتین کہتی ہیں چھوٹے بچے گھر چھوڑ کر مجبوراً آٹا خریدنے آتے ہیں مگر مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ آٹے کا بھی پڑ رہا، ہر چیز کا پڑ رہا، بیمار بندے بے ہوش ہو جا، ملتا پھر کچھ نہیں، پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں، وہ تو آئی نہیں نہ رہی ہے چینی، تو کہتے ہیں ہے ہی نہیں۔ ہاں جی، پیچھے گودام میں ہی نہیں ہے کہتے ہیں چینی۔ شہریوں نے حکومت سے نوٹس لینے اور سستے آٹے وافر مقدار میں فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ محکمہ صحت فیصل آباد کی نااہلی لاکھوں کا نقصان کرنے لگی، مرکزی دفتر کا قیمتی سامان لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ محکمہ صحت فیصل آباد کی نااہلی سر چڑھ کر بولنے لگی۔ محکمہ صحت کے مرکزی دفتر میں لاکھوں کا سامان لوارث، حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے باعث بیڈز، ویل چیئرز اور سائڈ ٹیبلز کھلے آسمان تلے خراب ہونے لگے۔ گرد و غبار اور بارش کے پانی سے سامان زنگ آلودہ ہونے لگا۔ محکمہ صحت انتظامیہ لاکھوں روپے مالیت کا سامان محفوظ مقام پر منتقل نہ کر سکا۔ محکمہ صحت کی سستی مریضوں کے علاج معالجہ کے لیے آیا سامان ہسپتالوں تک نہ پہنچ سکا۔ انتظامیہ سامان کو مرکزی دفتروں میں خراب ہونے کے بجائے ہسپتالوں تک پہنچائے، شہریوں کا مطالبہ۔ سٹی 41 پر خبر چلنے کے بعد محکمہ صحت انتظامیہ نے سامان علاج گاہوں میں منتقل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بحرانوں میں گھر گئی،
PFC शेयर्स में 50% कटौती, मुलाजमिन की तनख्वाह और ठेकेदारों की अदायगी करना मुश्किल हो गया। की किल्लत फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए तनख्वाहें अदा करना चैलेंज बन गया। PFC शेयर्स में 50% कटौती के बाद कंपनी के माली मसाइल बढ़ने लगे। मुलाजिमीन की तनख्वाहें और ठेकेदारों की अदायगियां करना मुश्किल होने लगा। कंपनी हुक्काम के मुताबिक PFC शेयर्स में कटौती के बाद मामला चलाना मुमकिन नहीं रहा है। मुलाजिमीन की कम अज कम तनख्वाह 32,000 करने से अकाउंट्स पर बोझ मुसलसल बढ़ रहा है। फंड्स की अदम दस्तयाबी, फैसलाबाद में तरक्याती काम लटक गए। अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर एग्जिट रैंप का तमीराती काम सुस्त रवि का शिकार। FDA ने काम मुकम्मल न होने की वजह फंड्स की अदम दस्तयाबी को करार दे दिया। रेलवे अराजी कीमत में महकमा रेलवे के 13 करोड़ के वाजबात अदा नहीं किए जा सके। ठेकेदार की जानिब से तमाम हैवी मशीनरी का काम भी रोक दिया गया। जराये के मुताबिक बकाया जात की अदम अदायगी के बायस फ्लाईओवर गार्डर्स नस्ब न हो सके। आम इंतखाबात के दौरान मुंजमद फंड्स का इजरा न हो सका। जंग में महकमों की जानिब से यूटिलिटी बिल्स की अदायगी कड़ा इम्तिहान बन गई। कब हुकूमत बनेगी, कब फंड्स मिलेंगे, सरकारी अमवार ठप होने लगे। फंड्स न होने से टेलीफोन, बिजली, सुई गैस के यूटिलिटी बिल्स की अदायगी रुकी हुई है। ऑफिस मैनेजमेंट, स्टेशनरी, मुरम्मत और दीगर दफ्तरी जरूरियात के लिए भी पैसे नहीं। DC दफ्तर, शोबा रेवेन्यू, महकमा सेहत, सोशल वेलफेयर, महकमा लेबर, महकमा बहबूद आबादी, महकमा लोकल गवर्नमेंट, ज़राअत, तालीम को फंड्स की अदम दस्तयाबी से मुश्किलात दरपेश हैं। महकमा खजाना ने इंतखाबात से कबल ही फंड्स वापस लिए थे। फेस्को बिजली चोरी और यूनिट्स में खुर्द बुर्द करने वालों के खिलाफ मुतहरिक 7 माह में 6900 से ज्यादा मीटर्स टेस्ट, 42,92,000 यूनिट्स के बिल जारी किए। MNT लैब ने हजारों यूनिट्स के खुर्द-बुर्द होने का सुराग लगा लिया। गुज़िश्ता 7 माह में 6900 से ज्यादा मीटर्स टेस्ट किए गए। 42,92,000 टेस्ट यूनिट्स के बिल सार्फिन को चार्ज। फेस्को के शोबा MNT ने रिपोर्ट जारी कर दी। MNT लैब ने खराब, स्लो और दीगर मीटर्स की तकनीकी टेस्ट किए। फेस्को हुकाम के मुताबिक जदीद लैब में मीटर्स टेस्टिंग का अमल जारी है। इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर हर सूरत बिल चार्ज होंगे। बिजली चोरों की शामत, रात की तारीकी में डायरेक्ट तारें लगाकर और मीटर टेम्पर करने वाले बिजली चोर हो जाएं होशियार। फेस्को की स्पेशल टास्क फोर्स के नाइट रेड गुज़िश्ता एक हफ्ते में 28 बिजली चोर पकड़े गए। बिजली चोरों को 16 लाख से ज्यादा के जुर्माने, मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज करा दिए गए। 79 बिजली चोरों को धर लिया। 320 को जेल की हवा खानी पड़ी। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम के दौरान 6 करोड़ रुपए जुर्माना और 3.5 करोड़ रुपए की रिकवरी की। एक्सियन फेस्को सैयद फहीम शाह के मुताबिक बिजली चोरी की मुहिम के दौरान 13 लाख यूनिट्स डिटेक्ट। कैदियों के खाने के हवाले से IG जेल का बड़ा इकदाम, अदालतों की पेशियों पर जाने वाले कैदी अब भूखे नहीं रहेंगे। IG जेल मियां फारूक नजीर कहते हैं, अदालत जाते वक्त कैदियों को खाना लंच बॉक्स में पैक करके दिया जाएगा। कैदी सारा दिन भूखे रहते हैं और जेल वापसी पर शाम को खाना खाते थे। लंच बॉक्सेस देने से रोजाना 4000 के करीब कैदियों को अदालती पेशी पर फायदा होगा। कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग लाइसेंस ना बनवाने वाले शहरियों के खिलाफ घेरा तंग। लर्निंग लाइसेंस के 42 दिन पूरे होने पर कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस ना बनवाने वालों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लर्निंग लाइसेंस बनाकर कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग लाइसेंस ना बनवाने वाले शहरियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। CTO मकसूद अहमद ने कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग लाइसेंस ना बनवाने वालों के खिलाफ खसूसी मुहिम शुरू करने का हुक्म दे दिया। लर्निंग लाइसेंस के 45 दिन पूरे होने पर कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस बनवाना नागुज़ीर है। फैसलाबाद के शहरियों की बड़ी तादाद लर्निंग लाइसेंस बना चुकी है। कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस ना बनाने वालों को अब सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। CTO मकसूद अहमद लून कहते हैं, कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस की चेकिंग के लिए खसूसी मुहिम शुरू कर रहे हैं। इन लोगों ने लर्नर लाइसेंस बनाए हुए हैं और 42 दिन उनके पूरे हो चुके हैं। मेरी उनसे अपील है कि वो फिल फॉर हमारे दफातर आए, जो कि 24/7 सर्विस दे रहे हैं अवाम की सहूलत के लिए, तो वो अपने फिल फॉर अपने लाइसेंस बनवाएं। पुलिस हुकाम ने लर्निंग लाइसेंस के बावजूद कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस ना बनवाने पर भारी जुर्माने का अंदिया दिया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। थानों को सेप्स प्रोटोकॉल पर मुंतकिल करके भी बिल्डिंग्स की हालत तब्दील ना हो सकी। थानों पर करोड़ों रुपए के फंड से 5 स्टार होटल जैसी शक्ल दी गई। करोड़ों रुपए के फंड से थाने सेप्स प्रोटोकॉल पर मुंतकिल, मगर बिल्डिंग्स की हालत बेहतर ना हो सकी। सामने से थाने 5 स्टार्स होटल जैसे, अंदरूनी और बैक साइड से बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार है। थाना आने वाले साइलिन को दाखिल होने पर 5 स्टार होटल और पिछली साइड पर खंडर का गुमान लगने लगा। करोड़ों रुपए से फ्रंट साइड की तज़ीनो आराइश और फर्नीचर की खरीदारी की गई। अंदरूनी और बिल्डिंग की खस्ता हाल हिस्से थानों की तज़ीनो आराइश के मंसूबे का मुंह चढ़ाने लगे। थानों की मुकम्मल तज़ीनो आराइश का फिलहाल कोई मंसूबा नहीं बनाया गया। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद।
पंजाब बार कौंसिल की हिदायत पर फैसलाबाद डिवीजन में वकला की हड़ताल। वकला के अदालतों में पेश न होने से साइलिन रुक गए। कौंसिल की हिदायत पर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार का अदालतों के बाइकआउट। वकला अदालतों में पेश न हुए। फैसलाबाद बार ने अदालतों की तकसीम से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा कर दिया। ओहदेदारान की वकला के घरों पर छापे, सियासी और गैर कानूनी गिरफ्तारियों की मजम्मत। चन्योट बार की हड़ताल। वकला ने अदालती अमूर का मुकम्मल बाइकआउट किया। वकला की अदालतों में अदम पेशी से साइलिन को मुश्किलात। वकला का कहना था कि गिरफ्तार वकला को फिल फोर रिहा किया जाए। बार ओहदेदारान ने कहा कि अदालतों की तकसीम के लिए मुतनाज़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया। अगर अदालतों की तकसीम का नोटिफिकेशन वापस न लिया गया वो बाकायदा तहरीक चलाएंगे। तोबा डेक्सिंग में वकला की हड़ताल से साइलिन रुल गए। वकला के अदालतों में पेश न होने से जमानत और दीगर केसेस की समाअत न हो सकी। बार एसोसिएशन इलामिये में कहा गया कि वकला के घरों पर गैर कानूनी छापे और गिरफ्तारियों को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अहमदपुर सियाल में भी वकला ने मुकम्मल हड़ताल की। सदर बार अहमदपुर सियाल नफर हुसैन खान बलोच, जनरल सेक्रेटरी मलिक सफीर हुसैन खान ने वकला के घरों पर छापों और गिरफ्तारियों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख का नए पार्क और अलाइड अस्पताल 1 का दौरा। फ्लाईओवर एग्जिट रैम्प के तामीराती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। ओपीडी और सर्जिकल इमरजेंसी में मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात को भी चेक किया। अब्दुल्ला नैयर शेख ने अलाइड अस्पताल 1 में मरीजों और लवाहिकीन से भी मुलाकात की। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फहीम यूसुफ ने इंतजामी और तिबी अमूर पर ब्रीफिंग दी। डेप्यूटी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने जेर तामीर अब्दुल्लापुर झुमरा रोड फ्लाई ओवर के मंसूबे का भी मुआयना किया। चीफ इंजीनियर FTA महर अयूब गुजर ने तामीराती कामों के बारे में भी आगाह किया। और नाज़रीन, वज़ीर आला मोहसिन नकवी कपास की पैदावार में इजाफे के लिए मुतहरिक। गोचरा में कपास मेले का इनेकाद किया। पंजाब हुकूमत का किसानों के लिए बड़ा कदम। गोजरा में पहला कपास मेला सज गया। मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से खाद और बीज के स्टॉल्स लगाए गए हैं। डिविजनल डायरेक्टर पेस्ट फार्मिंग आमिर रसूल की खसूसी शिरकत। बोले, कपास की पैदावार में इजाफे के लिए मेयारी बीज का इंतखाब इंतहाई जरूरी है। हुकूमत जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए कोशा है। ये मेला बेसिकली हमारे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर नादर चट्टा साहब ने ना इस साल बड़ा अग्रेसिव प्लान हमने शुरू किया है, अगेती कपास के हवाले से भी और रवायती कपास के हवाले से। इसको हम इंशाअल्लाह ताला, उनका एक विजन है कि मैक्सिमम रकबे पर इसको काश्त किया जाए और उसमें फी एकड़ पैदावार बढ़ाई जाए, क्योंकि मौसमी तगय्युरात की वजह से कपास के पिछले सालों में कीड़े बीमारियों का हमला ज्यादा होने की वजह से पैदावार कम हुई है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत गुलजार शाहिद कहते हैं, कपास मेले का मकसद किसान भाइयों की तरबियत करना है। स्टॉल्स पर सरकारी कीमत पर किसानों को बीज और खादें फराहम करेंगे। बुनियादी मकसद इस मुल्क की खुशहाली की बारिश के लिए इस साल पहला कतरा बनना है। हम यहाँ पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ इलाका के और दूसरी तहसीलों के तमाम काश्तकारों को बेहतरीन कंपनियों का बेहतरीन सर्टिफाइड सीड इधर कपास का दस्तयाब होगा। यहाँ पर कंट्रोल रेट पे मुतवाज़न खादें दस्तयाब होंगी। मेले में काश्तकारों को एक हफ्ते तक कपास के मेयारी बीज और मुनासिब वक्त पर खाद के इस्तेमाल के हवाले से आगाही दी जाएगी। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोजरा।